Okay, are you able to see the screen? Yes, screen is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay, Janvi, start the prayer. Yes, start the prayer. Okay, anyone else can start the prayer. Yes, ma'am. Okay. Pray before study. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, and to give thanks to you in all things. Amen. Okay. Okay, so in the last class, we have discussed about the law of independent assortment. Okay, so we have done the law of dominance, law of segregation, okay, and law of independent assortment also we have done. Okay, so this is the law of independent assortment that you have done, and I hope you all have do this in your notebooks. Okay, so make crosses again and again so that you will able to find out the ratio of these crosses. Okay, so today I will tell you the formula. Okay, firstly, tell me any problem regarding this law of independent assortment. Anything you want to ask regarding the law of independent assortment? Because this law is very, very important. Any problem is there? Yes, girls, give me the response. No, ma'am, it's clear. Okay, so today I will tell you how to write the formula, how to write the phenotypic and genotypic ratio in case of monohybrid and monohybrid and dihybrid cross. Okay, in case of monohybrid cross, it is very simple to write the ratio because only 4 offsprings are there. You know कि F1 में भी 4 offsprings produce होते हैं, in F2 and F2 also 4 offsprings are there. So it is very easy to write the ratio. Simply you can see and you can write the ratio. Okay, like 3 4 plants are there. So you have seen कि 3 में 3 जो है tall है and 1 is short. रुद्र मम्मा को सुंड खिला, मम्मा ठीक हो Yes, जाएगी. yes, yes. Who is this? All of you just mute yourself. Okay, so now monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, so you can see how to write the phenotypic ratio. Okay, one more trihybrid cross is also there. My voice is audible. Yes, ma'am. Okay, so there's a trihybrid cross also, but you know don't want you don't, it is not required in your class. Okay, trihybrid cross you will study in the higher classes, but just remember कि how to write the formula, क्योंकि जब आप मोनोहाइब्रिड में तो थोड़े से प्लांट है, यू कैन इजीली राइट द रेशियो, बट जब डाई हाइब्रिड क्रॉसेज आएंगे तो उसमें 16 प्लांट्स जो हैं 16 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ F2 जनरेशन. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट द ratio. Okay, so for that we are having the formulas. So you can see in the picture, monohybrid cross में formula है 3:1 and in dihybrid cross their formula is 3:1. Okay, so whenever monohybrid cross only 3:1 and dihybrid cross 3:1 is to raise to power 2, उसमें आपने raise to power लिखनी है 2, and when you multiply 3:1 3:1 तो you will get the ratio. Just you can, you know कि how to do it. 3 with this 3 and 1, okay, this one with this 3 and this one, so you will get this type of ratio. Okay, you all know कि how to multiply this. Okay, so you will get the ratio 9:3:1 in case of dihybrid cross. And if you want to write the trihybrid also, that also you can write with the help of this 3:1. that अगर ट्राई हाइब्रिड है तो आपकी आ जाएगी रेज टू पार 3. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि मोनो हाइब्रिड में कोई भी रेज टू पार नहीं है. 3:2 डाई हाइब्रिड में रेज टू पार 2 है. ट्राई हाइब्रिड में भी इफ यू वांट टू राइट तो यू कैन राइट द रेशियो 3:1 रेशियो raised to power 3. Okay, in case of genotypic ratio the formula is 1:2:1. Okay, monohybrid cross में formula is 1:2:1 और monohybrid में क्योंकि कोई भी ratio नहीं है, monohybrid है तो you will get the ratio 1:2:1. And in case of dihybrid cross the formula is 1:2:1 and raised to power 2. Okay, इसमें आप raised to power लिखोगे 2 and you will multiply it 2 times. Okay, 1:2:1 into 1:2:1, इसको आप multiply करोगे तो you will get this ratio of dihybrid cross. Okay, so this is the way how to write the formula, and in the same way you can write the ratio of the trihybrid cross also, like 1:2:1 in raised to power 3 in case of genotypic ratio. Only thing that you have to remember कि monohybrid में cross में
फॉर्मूला है 3:1 एंड सॉरी फिनोटिपिक रेशियो में फॉर्मूला है 3:1, ओके 3:1 एंड जीनोटिपिक में फॉर्मूला है 1:2:1। ओनली थिंग इज डैट कि मोनो में आप कुछ भी नहीं लगाओगे, डाई में रेज टू पावर 2 होगी, ट्राई में रेज टू पावर 3 होगी। इन द सेम वे यहाँ पे भी मोनो में रेज टू पावर कुछ नहीं है, डाई हाइब्रिड में रेज टू पावर 2 एंड ट्राई हाइब्रिड में रेज टू पावर 3 होगी। ओनली थिंग डैट यू हैव टू रिमेंबर इज डैट फिनोटिपिक रेशियो में फॉर्मूला क्या है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो में फॉर्मूला क्या है 1:2:1। okay, so this is all about the formula, that how to write the formula in case of monohybrid, dihybrid, and you can write the formula of trihybrid also. But just remember कि trihybrid crosses you will study in the higher classes only. okay, trihybrid means when you are taking the 3 characters simultaneously, जब आप 3 character को एक साथ ले रहे हो, 3 characters को, तो then it is called as the trihybrid cross. okay, so this is clear? Yes, this is Yes, clear. ma'am. okay, so next important question is the here. okay, first of all ये देख लो that we have studied all the 3 laws. so this is the statement of all the 3 laws. okay, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. so you can see in the picture. From here you can write the, first of all, whenever you are doing a cross, write the statement of each law. okay, suppose you are explaining the law of dominance, so write the statement of law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment, then explain the law with the help of the cross. okay, so law of dominance क्या कहता है? The law states that when crossing between organism occur for contrasting traits, only one character of the pair expresses itself in the F1 generation. okay, so ये आपने आगे भी देखा कि उसमें when crossing between organism occur for contrasting traits, only one character of the pair expresses itself in the F1 generation. जैसे आपने F1 generation में देखा था सारे plants क्या थे? tall थे, तो उसने कहा एक ही character अपने आप को express करता है in the F1 generation, and the character that expresses itself is called as the dominant, and the character that does not express itself in the F1 generation is called as the recessive. okay, then you are having the law of segregation. This law states that genes stay together, segregate at the time of gamete formation. This means that the mixing of gene in the form of hybrid does not occur. This is also referred to as the law of purity of gametes. okay, अब उसने क्या है कि जीन स्टे टुगेदर, जीन्स एक साथ रहती है, जैसे कैपिटल टी है, एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. जैसे मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे वो जो 2 कैपिटल टी है, कैपिटल टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे. एक गैमेट में एक कैपिटल टी जाएगा, दूसरे वाले में एक कैपिटल, दूसरा वाला कैपिटल टी जाएगा. ओके, सो उसने कहा दिस मीन्स दैट मिक्सिंग ऑफ जीन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड डज नॉट ऑकर. ओके, जीन्स जो है उसका मिक्स नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. देन यू आर हैविंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट यू ऑलरेडी नो, कि जैसे हमने वहाँ राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया था, तो वी हैव सीन इन द F2 जनरेशन कि हमेशा हमारे पास राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन नहीं आए, हमारे पास राउंड रिंकल्ड और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो भी आए. ओके, तो उसने कहा when crossing occurs between individual differing in 2 or more than 2 pair of contrasting traits. okay, उसने कहा 2 या 2 से ज्यादा करेक्टर्स से वो डिफरेंट करते हैं. जैसे हमने लिया था राउंड सीड की शेप और उसका कलर भी लिया था, ओके, येलो कलर. तो उसने कहा differing in 2 or more than 2 pair of contrasting traits, the inheritance of one pair is not affected by the presence of the other. okay, so round हमेशा, मैंने जैसे बोला राउंड हमेशा येलो के साथ नहीं जाएगा. okay, so inheritance of one pair is not affected by the presence of the other. okay, for instance, the inheritance of tall character of a plant is not related to the smooth character of the seed. okay, ये नहीं है कि हमने सपोज हमने एक प्लांट लिया, उसका टॉल है और उसका जो सीड है वो स्मूथ है, तो ये नहीं कि वो हमेशा साथ जाएंगे. दीज टू करेक्टर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो सकते हैं. जैसे राउंड है, राउंड एक में चला गया तो रिंकल दूसरे में चला गया, तो येलो किसी और के साथ चला गया, रिंकल के साथ चला गया. ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. But just remember this thing, that you can explain the law of independent assortment with the help of only dihybrid cross. okay, law of dominance और law of segregation को आप मोनोहाइब्रिड से या डाईहाइब्रिड से किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. बट रिमेंबर, ऑलवेज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस. okay, so this is all about the different laws of Mendel. okay, so is this clear? Yes girls, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, so now our next important question is the inheritance of blood groups. okay, now we will study ki how blood groups are inherited from the parents to their offsprings. so you can see in the picture, usne kaha a person can have
एनी वन ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी और ओ. ओके, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ. ओके, ए जीन रिप्रेजेंटेड बाय आई कंट्रोल्स द ब्लड ग्रुप सिस्टम. ओके, एक जो ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो जीन कंट्रोल करती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. It has 3 forms which are denoted by the symbol IA, IB and IO. Okay, the genes IA and IB do not dominate each other and produce their effect in individual, hence they are said to be co-dominant. However, genes IA and IB dominate the gene IO, which explain its recessive nature in relation to genes IA and IB. Okay, so just try to understand. 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ. ओके, दिस इज क्लियर. देन हम जीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आई से. ठीक है, सिर्फ जीन को हमने नाम दिया आई से. अब इसमें डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज है इसमें. मैंने हमेशा आपको बोला जीन ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स. जीन हमेशा पेयर में होगी, क्योंकि 2 पेयर है तो पेयर में से एक जो होगी एलील वो मदर की होगी, 1 फ्रॉम द फादर. ओके, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल. ब्लड ग्रुप्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे आई बी एंड आई ओ 3 एलील्स जो हैं, सभी केसेस में 2 एलील्स होती हैं. मैंने आपको हमेशा बोला 2 एलील्स होती हैं. ब्लड ग्रुप्स के केस में 3 एलील्स हैं, आई बी एंड आई ओ. बट ये आती पेयर्स में ही है. ओके, होती ये पेयर्स में ही है, बट 3, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि एलील्स जो होती हैं हमेशा 2 होती हैं. एलील जीन ऑलवेज ऑकर इन पेयर. यहाँ भी जीन ऑलवेज ऑकर इन पेयर, लेकिन यहाँ एक जीन की 3 फॉर्म्स हैं. आई ए हमेशा 2 फॉर्म्स हैं. यहाँ पे जैसे टी और कैपिटल टी आपकी 2 होगी. यहाँ पे एक ही जीन आई एक जीन है, आई की 3 फॉर्म्स हैं, आई ए आई बी एंड आई ओ. ओके, अब ये किसी भी पर्सन में आएंगी, किसी भी इंडिविजुअल में आएंगी तो ये पेयर्स में ही आएंगी, लेकिन किसी में कोई भी पेयर हो सकता है. यू कैन सी हियर एबीओ ब्लड ग्रुप्स, जीनोटाइप आई ए और आई ए का पेयर भी हो सकता है. ओके, ये तीनों आपस में, ये जो 3 है ये कैसे कैसे पेयरिंग करेंगी. एक फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, आई ए या फिर आई ए और आई ओ, एक ये पेयर आ गया. सेकंड पेयर क्या है, आई बी और आई बी पेयरिंग कर सकते हैं, या फिर आई बी जो है आई ओ के साथ पेयर करेगा. देन आई ए एंड आई बी, दिस इज ऑल्सो, ये भी पेयर बन, मतलब हमने इसमें से हम कितने पेयर्स बना सकते हैं. ओके, दिस यू हैव टू सीन कि आई ए आई बी आई ओ में से हम कितनी पेयरिंग कर सकते हैं. तो हम टोटल इसमें 6 पेयर्स बना सकते हैं. यू कैन सी फर्स्ट पेयर क्या आ गया, आई ए, सेकेंड क्या आ गया, आई ए आई ओ, थर्ड आई बी एंड फोर्थ वन आई बी आई ओ. ओके, फिफ्थ वन इज द आई ए आई बी एंड सिक्स्थ वन इज द आई ओ आई ओ. ओके ओके, सो 6 पेयर्स. आपने ये सिर्फ ये चीज देखनी है, ये तीनों एलील्स हैं. ओके, 3 एलील्स, सभी केसेस में 2 एलील्स, लेकिन ब्लड ग्रुप्स के केस में 3 एलील्स होती हैं. ये एलील्स पेयर्स में ही ऑकर करेंगी, तो ये 3 एलील्स टोटल 6 पेयर्स बनाएंगी. अब आपने मेन चीज क्या देखनी है कि आई ए और बी जो है वो आपस में डू नॉट डोमिनेट ईच अदर. ओके, जैसे आपने लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, capital T is dominant and small t is recessive. But in this case, IA is also dominant, IB is also dominant. ना A B को dominate कर पाता ना B dominate. Do not dominate each other and produce their effect on individual. Hence they are called co-dominant. Okay. कैपिटल T और रिसेसिव T में कैपिटल T इज डोमिनेंट एंड स्मॉल t इज रिसेसिव. उसमें हम बोल रहे थे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, लेकिन इसमें आई ए और आई बी का जो पेयर होगा वो को डोमिनेंट है, क्योंकि ना आई ए आई बी को डोमिनेट कर पाता ना आई बी आई ए को डोमिनेट कर पाता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ को डोमिनेंट. ओके, आई ए और आई बी. बट व्हेन आई ए आई ओ के साथ आएगा तो तब ये डोमिनेंट शो करेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी की तरह. ओके, इन दैट केस आई ए इज डोमिनेंट एंड आई ओ इज रिसेसिव. अगर बी आएगा आई बी इज डोमिनेंट एंड आई ओ इज रिसेसिव. ओके, सो अब आपने देखना है कि फिनोटाइप कैसे प्रोड्यूस होंगे. इफ आई ए एंड आई ए होगा तो मैंने आपको बोला कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किसी पर्सन के अंदर ये पेयर है आई ए और आई ए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि ए है दोनों में है तो ए आएगा. अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप आई ए और सॉरी जीनोटाइप आई ए और आई ओ है, ओके, सो इन दैट केस व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, कैन एनीबॉडी टेल मी. यस गर्ल्स, कैन एनीबॉडी टेल मी. आई एम टेलिंग यू, अगर किसी ये जीनोटाइप है, अगर हर एक पर्सन के अंदर यही एक पेयरिंग होगी, इनमें से कोई एक पेयर होगा. सपोज यू आर हैविंग द पेयर आई ए, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए. इफ यू आर हैविंग, आई एम आस्किंग यू, इफ यू आर हैविंग द
genotype IA and IO, then tell me what is the blood group in that case. A. Yes, A, क्योंकि A डोमिनेंट है, O रिसेसिव है. ओके, सो A अगेन A ब्लड ग्रुप होगा. देन IB और IB अगेन B ब्लड ग्रुप होगा. बट किसी पर्सन के अंदर ये जीनोटाइप है IB और IB और IO, तो अगेन B डोमिनेंट है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर IA और IB आपस में को डोमिनेंस शो करते हैं, बट IA और IO या फिर IB और IO आपस में डोमिनेंस शो करते हैं. मींस A और B. Excuse me, ma'am. यस यस. How do we come to know which is dominant? Means how do we come to that O is dominant here and B is not? जब हम सच में जैसे आप पी प्लांट्स में आप बना रहे हो, आप दो प्लांट्स को क्रॉस करवा रहे हो, तो आपके F1 की जो रेशियो आएगी, आपने बोला जो भी F1 की जो F1 में आपके सारे टॉल प्लांट आए, तो आपने बोला कि जो F1 में हमने ये चीज़ बोली कि F1 में जो भी चीज़ें आती हैं वो टॉल आती हैं. तो यहाँ भी हमने ये करा के देखा है कि अगर किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ऐसे IA और IO, ठीक है, तो उनको जब करा के देखेंगे तो उसमें A आएगा. ठीक है, अगर IA और IO है तो जो ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड ग्रुप आएगा वो A आएगा. तो अगर A आता तो मीन्स A डोमिनेंट है. ओके, जो दूसरे को डोमिनेट कर पाता है वो डोमिनेंट होता है. ओके, आर यू गेटिंग? यस मैम. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि आपने ये तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ये तो रियल में ये चीजें मतलब होती है ना कि उन्होंने क्रॉस से. देखो साइंस में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, उसका प्रूफ होता है. जैसे आपने पी प्लांट में देखा, मेंडल ने ऐसे ही थोड़ी बोल दिया, मेंडल ने दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया, फिर उसने देखा कि F1 में रेशियो क्या आ रही है. अभी हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने तो वहाँ क्रॉस करके देखा कि जब उसने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करवाया तो जो F1 में सारे प्लांट्स आए ऑल वर टॉल. अब हमें अब यहाँ क्या करना है, हमने भी यही देखना है कि अगर किसी पेरेंट में IA और IO है तो मीन्स अगर मतलब उसमें जो ऑस्ट्रिंग्स होंगे उसमें ब्लड ग्रुप अगर A आता है तो इट मीन्स इट इज डोमिनेंट. ओके, सो हमने बस ये देखना है कि रेशियो क्या आ रही है, F1 जनरेशन में कौन सा जो है वो शो कर रहा है, उस बेसिस में हम बोलते हैं कि वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है. ओके, देन अगेन IA और IB, क्योंकि IA और IB आपस में को डोमिनेंट है तो उस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB. ओके, एंड इफ IO एंड IO क्योंकि बोथ आर रिसेसिव तो ब्लड ग्रुप इज O. ओके, सो दिस इज क्लियर. यस गर्ल्स, दिस इज क्लियर. यस मैम. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, इट शोज द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है, मल्टीपल एलिज्म मतलब इसमें सभी केसेस में दो दो एलील्स हैं, बट इस केसेस में इस केस ब्लड ग्रुप के केस में 3 एलील्स हैं. और 3 एलील्स जो है आती पेयर्स में ही है, क्योंकि एक मदर से आएगी एक फादर से आएगी, होगी हमेशा पेयर्स में ही, लेकिन एलील्स 3 होंगी. तो इस वे में हमारे पास कितने जीनोटाइप, यू कैन सी हियर हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर देयर, 6 जीनोटाइप. हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर देयर, 4. हाँ, और फिनोटाइप कितने, 4. जीनोटाइप 6 बने बट फिनोटाइप कितने आए, 4. ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल. ओके, ये एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप O. उसमें 2 पेरेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप A एंड B. ओके, ये हम इसको ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 2 पेरेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप A and B, possesses the gene pair IA-IO and IB and IO. ठीक है, अब ये देखो 2 पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है एंड B. ठीक है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप आप ले लो B है. अब A में हमें जीनोटाइप नहीं पता, क्योंकि अगर सपोज किसी बंदे के अंदर हमें पता है कि एक पर्सन का A ब्लड ग्रुप है, ओके, तो हमें उसका जीनोटाइप, हम ये भी बोल सकते हैं उसका जीनोटाइप IA और IO भी हो सकता है, या फिर उसका जीनोटाइप IA और IE भी हो सकता है. ओके, बट इसने यहाँ पे जीनोटाइप भी दिया हुआ है, उनका ब्लड ग्रुप AB है, पोजेसेस द जीन पेयर IA एंड IO, IB और IO. ठीक है, हेट्रोजाइगस है दोनों पेरेंट. ठीक है, फर्स्ट का ब्लड ग्रुप A है लेकिन उसमें IA और IO है, और सेकंड का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, IB और IO. In this case, the blood group O can be inherited by the child even though neither parent possesses this phenotype. अब इस केस में देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम कई बार बोलते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट और बच्चों का बिल्कुल अलग है. ओके, देयर ऑफस्प्रिंग्स हैव टोटली डिफरेंट ब्लड ग्रुप. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स कैन बी हेट्रोजाइगस, दे कैन बी होमोजाइगस. ठीक है, वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, IA और IA भी हो सकता है. अगर तो होमोजाइगस होंगे तो डेफिनेटली A ब्लड ग्रुप आएगा या B ब्लड ग्रुप आएगा या AB ब्लड ग्रुप आएगा. ओके, बट क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस. ठीक है, पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस. तो इन दिस case blood group O can be inherited by the child even though neither parent possesses this phenotype. यहाँ देखो, blood group A and blood group B. Okay,
ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें ये सपोज दिस इज अ मदर, तो मदर का आप ले लो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसमें जीनोटाइप के आई ए और आई ओ। यहाँ ब्लड ग्रुप बी है फादर का, तो आई बी और आई ओ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेपरेट, क्योंकि आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम हर जीन जो है वो सेपरेट होती है। हमने इनको सेपरेट किया। ओके, नाउ अब आपको देखना है यू हैव टू सी द फिनोटाइप। सो यू कैन सी हियर, हमने यहाँ दिखा आई ए और आई ओ एंड आई बी एंड आई ओ। अब जब इनकी ये ऑफस्प्रिंग्स बने, 4 ऑफस्प्रिंग्स आर देयर। ओके, फर्स्ट क्या है ए बी, सेकेंड क्या है बी, थर्ड क्या है ए और फोर्थ क्या है ओ। ओके, जस्ट लुक इनटू दिस केयरफुली। तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग्स आए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पेरेंट्स का ए बी ब्लड ग्रुप है और अगर वो हेट्रोजाइगस है ऊपर से, ओके, होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस है, आई ए और आई ओ है, तो हमारे पास बच्चों के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स हैविंग 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ऑफस्प्रिंग्स में ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ऑफस्प्रिंग्स में बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ऑफस्प्रिंग्स में ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, जबकि पेरेंट्स में ए और बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में पॉसिबिलिटी है, ओके, क्योंकि हम इनके गैमेट्स बना रहे हैं, इनको मिक्सिंग जब आप करोगे तो ऑफस्प्रिंग्स कैन हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी ऑल्सो, बी ऑल्सो, ए ऑल्सो एंड ओ ऑल्सो। ये ठीक है, ये आपका प्यूनेट स्क्वायर है, आपने यहाँ बनाना आई बी ई को आई के ए के साथ, आई ओ को आई ए के साथ, देन दिस आई बी विद दिस आई ओ, this IO with this IO. Okay, so in this way we are getting 4 type of genotype. Okay, तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप्स है, ए बी ब्लड ग्रुप हैं और पेरेंट जो हेट्रोजाइगस हैं, सो इन दैट केस ऑफस्प्रिंग्स कैन हैव 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप। मींस कि जो बच्चा जो बेबी बॉर्न हो रहा है उस बेबी का ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, उस बेबी का बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, उसका ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, उसका ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ओके, सो ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल हियर। ओके, सो इज दिस क्लियर? ओके, सो यू कैन सी हियर Yes, ma'am. ये Will जीनोटाइप you है, ये please फिनो। explain? हाँ हाँ, यस यस यस, क्या बोल रहे हो? Yes, please tell me what you're asking. Okay, so clear? Okay, so this is very very simple कि blood group A है and blood group B है, ठीक है। अब Yes, ma'am. ओके, तो ऑफस्प्रिंग्स में जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप के क्यों आए? क्योंकि पेरेंट्स हेट्रोजाइगस थे। अगर पेरेंट होमोजाइगस होते हैं, ओके, तो अगर पेरेंट्स होमोजाइगस हो तो वो भी अपनी नोटबुक्स पे, ओके, सो यू ऑल कैन ड्रॉ, ओके, यू ऑल कैन टेक, आप अपने अपने कुछ भी लेके जो है क्रॉसेस बना सकते हो। अब जैसे मैंने आपको हेट्रोजाइगस बताया, तो आप होमोजाइगस अपनी रफ नोटबुक पे यू कैन टेक द होमोजाइगस ऑल्सो, लाइक आई ए और आई बी और आई बी, या फिर मदर हेट्रोजाइगस ले लो, फादर होमोजाइगस ले लो। तो इन दिस वे यू कैन मेक अ नंबर ऑफ क्रॉसेस। ओके, तो आप उसमें रेशियोज देख सकते हो कि किस टाइप की हमारे पास रेशियोज प्रोड्यूस होंगी। बट इस टाइप की हमारे रेशियो क्या प्रोड्यूस हुई? अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं तो देन व्हाट इज द रेशियो? 1:1:1। ओके, तो हमारे पास रेशियो क्या है? क्योंकि सभी एक एक 1:1:1 की रेशियो जो है वो प्रोड्यूस हुई है। ओके, सो क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next your important question is the sex determination. Okay, this is also very very simple. Okay, उसने कहा sex determination is defined as the process of inheritance of sex of a child from the parent. Okay, a person can have a male sex or female sex. In human, the sex is determined by specific chromosomes called sex chromosome. You all know कि human beings के अंदर 46 chromosomes होते हैं. Out of 46 chromosome, 44 are the autosomes and 2 are sex chromosomes. Okay, you know कि 46 chromosomes in total. Out of 46, 44 are the autosomes and 2 are the sex chromosomes. Now you can see in the picture there are 23 pair of chromosome in humans. Out of total pair of क्रोमोसोम 1 पेयर रिप्रेजेंट द सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें से एक पेयर जो है 22 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोसोम एंड 1 पेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज। आप इस वे में भी लिख सकते हो कि 46 टोटल क्रोमोसोम है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इफ यू आर राइटिंग कि 46 टोटल क्रोमोसोम है देन यू कैन राइट कि 44 ऑटोसोम एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। बट इफ यू आर राइटिंग इन अगर पेयर्स में लिख रहे हो, ओके, इफ यू आर राइटिंग इन पेयर्स कि 23 पेयर्स हैं, तो देन यू आर हैविंग 22 ऑटोसोम्स एंड 1 इज द सेक्स क्रोमोसोम।
The chromosome in each of the 22 pairs are similar in size and shape in both male and female. Okay, उसने कहा chromosome in each of the 22 pairs are similar in size and shape in both male and female. जो 22 पेयर है वो मेल और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में जो 22 पेयर है, ठीक है. जो लास्ट 23 पेयर है, 23rd पेयर है, however the chromosome of the 23rd pair in the male differ from the 23rd pair in the female. There are these are called sex chromosome. ओके वो आपको पता है कि मेल के केस में क्या होता है एक्स वाई, ओके, और फीमेल के केस में है क्या है एक्स एक्स. सो जस्ट रिमेंबर कि जो 22 पेयर्स हैं दे आर सेम, बट जो 23rd पेयर है दैट इज डिफरेंट. 23rd पेयर मेल के केस में होता है एक्स वाई एंड फीमेल के केस में होता है एक्स एक्स. ओके, सो एक्स क्रोमोसोम इज द लार्जर क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलर क्रोमोसोम. X chromosome, X and Y carry gene that control sexual development. Okay, a male possesses one X chromosome and one Y chromosome in the 23rd pair. So due to this, half the male gametes have X chromosome and other half have Y chromosomes. ठीक है, तो उसने कहा है मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है. फीमेल के पास उसने कहा है फीमेल ऑन द अदर हैंड पोजेसेस 2 एक्स क्रोमोसोम on the 23rd pair, which mean all female gametes will have only X chromosomes. ठीक है, तो जितने भी मेल गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट इसलिए आपके जो मेल गैमेट्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम होगा. ओके, आपको पता है ना गैमेट में क्या, गैमेट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर नहीं होते गैमेट में. गैमेट कंटेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. तो इसलिए जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर डिफरेंट. ओके, मेल गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है. लेकिन जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ऑल आर सेम, क्योंकि सभी में एक्स 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 क्रोमोसोम होता है. ओके, गैमेट मीन दैट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. उसमें क्या होता है 22 प्लस एक्स. ओके, फीमेल के केस में 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स होगा हर फीमेल गैमेट में, बट इन केस ऑफ मेल गैमेट 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स. तो दो टाइप के मेल गैमेट होते हैं, बट फीमेल गैमेट एक टाइप का होता है. इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स, जो बेबी प्रोड्यूस होता है, द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द मेल गैमेट, और जो सेक्स होता है बेबी का दैट डिपेंड ऑन द मेल गैमेट. ओके, वो मेल पे डिपेंड करता है. ओके, द सेक्स क्रोमोसोम फॉर ए गर्ल आर XX एंड फॉर ए बॉय आर XY. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. ये देखो मेल और फीमेल. मेल गैमेट में ये देखो ये स्पर्म है एक्स और वाई, फीमेल गैमेट में एक्स है, हमेशा एक्स एक्स होगा. ओके, यहाँ से एक ही एक्स बनाया, लेकिन दो भी हो चार भी हो जितने भी एक्स ही होता है हमेशा. ओके, बट जस्ट रिमेंबर कि फीमेल में एक ही गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होता है मंथ में. तो मेल्स में बड़े सारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑल आर डिफरेंट. ओके, किसी में एक्स होता है, किसी नॉट ऑल आर डिफरेंट मीन्स दो टाइप के होते हैं, एक में एक्स होता है एक में वाई होता है. नाउ अब बेबी कैसे प्रोड्यूस होगा? अगर मेल गैमेट एक्स वाला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ प्रोड्यूस होगा, के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो देन यू विल गेट द, देन जो बेबी होगा वो बेबी कौन सा होगा? गर्ल बेबी होगा. ओके, बट अगर फीमेल का गैमेट जो है मेल के गैमेट वाई वाले गैमेट के साथ फ्यूज करता है, तो देन जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल बेबी प्रोड्यूस होगा. ओके, सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, सेक्स जो है वो डिटरमाइंड होता है ड्यू टू द मेल गैमेट, क्योंकि मेल गैमेट इज हेट्रोजाइगस, एक्स और वाई. मेल हेट्रोगैमेटी शो करता है, मेल में दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, बट फीमेल इज होमोगैमस, मींस कि उसमें दोनों जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे सेम होते हैं, क्योंकि एक्स एक्स है, तो जितना मर्जी एक्स प्रोड्यूस हो जाए एक्स 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 ही होगा, कोई भी डिफरेंट चीज नहीं होगी. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल कि अगर मेल का एक्स वाला गैमेट वाई एक्स के साथ करेगा तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा, गर्ल बेबी प्रोड्यूस होगी. एंड इफ वाई क्रॉसेस विद द एक्स, ओके, वाई वाला गैमेट होगा एक्स के साथ करेगा, तो देन द मेल बेबी इज हियर. ओके, सो दिस इज क्लियर. ओके, Yes, तो ये ma'am. हाँ, so when a sperm carrying X chromosome, okay, so this is written here, when a sperm carrying X chromosome fuses with an ovum carrying X chromosome during fertilization. ओके, तो उसने कहा गर्ल इज बॉर्न, एक गर्ल बॉर्न होगी व्हेन ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन ओवम कैरिंग एक्स क्रोमोसोम. ओके, ऑन द अदर हैंड ए बॉय इज बॉर्न व्हेन ए स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम fertilizes an ovum carrying X chromosome. So we can say the sperm determine the sex of the child. Okay, तो child का जो sex है that is determined by the sperm. Okay, so this is clear. Yes, ma'am. Okay, so anything you want? Okay, so all of you just tell me anything you want to ask regarding this, regarding the law of independent assortment, regarding the inheritance of blood group.
Please tell me any question is there. Can you please explain the Yes. Which law? Yes. Which law you are saying? Say again. inheritance of blood group? ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप डियर, आई एम टेलिंग यू, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स में क्या है कि जितने भी आपके बाकी करेक्टर्स होते हैं, हाइट है ये वो, उसमें है कि जीन्स जो है वो पेयर्स में होती हैं, मीन एलील दो ही होती हैं। सिर्फ ब्लड ग्रुप के केस में जो एलील्स हैं वो 3 एलील्स हैं। ओके, तो उसको आप बोलते हो मल्टीपल एलिज्म। ओके, 3 टाइप की एलील्स होती हैं जिसमें आप मल्टीपल एलिज्म बोलते हो। 3 एलील हैं बट आएंगी वो पेयर्स में ही, क्योंकि एक मैटरनल एक पैटर्नल। ओके, तो वो पेयर्स में ही आएंगी। तो जब आई ए, आई बी और आई ओ आप तीनों की पेयर्स बनाते हो, तो कितने पेयर्स आप टोटल बना सकते हो? 6 पेयर्स बनेंगे। ओके, 6 जीनोटाइप्स बनेंगे, मींस कि 6 जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स जो है पूरी दुनिया में होते हैं। 6 टाइप के जीनोटाइप्स ब्लड ग्रुप के केस में, और उनमें फिनोटाइप क्या प्रोड्यूस होंगे? 4 टाइप के फिनोटाइप प्रोड्यूस होंगे, ए बी एंड ओ। ओके, अगर आई ए और आई ए होगा तो क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो ए प्रोड्यूस होगा। अगर आई ए और आई ओ होगा तो क्योंकि ओ इज रिसेसिव तो फिर से ए ब्लड ग्रुप आएगा। अगर आई बी और आई बी होगा तो डेफिनेटली बी ब्लड ग्रुप आएगा। अगर आई बी और आई ओ जीनोटाइप होगा किसी के अंदर तो उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई ए और आई बी, ओके, इस केस में रिमेंबर कि आई ए और आई बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज शोइंग द फिनोमिना ऑफ को डोमिनेंस। ना ए बी को डोमिनेट कर पाता, ना बी डोमिनेट दूसरे को कर पाता है, इसलिए ऑफस्प्रिंग्स में दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। ओके, तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उस पर्सन के केस में, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द को डोमिनेंस। ओके, so this is all about the blood groups. Okay, clear? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if there's a situation that both the parents are homozygous with blood group O, so ma'am, of course they will be homozygous, but ma'am, it means that all their next generations will have O blood group, right? yes हाँ, अगर होमोजाइगस हैं दोनों पेरेंट्स तो डेफिनेटली दे आर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ ओनली, क्योंकि और कोई एलील तो है ही नहीं जो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी। सो अगर बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस तो डेफिनेटली दे आर हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, बट वो रेयर होता है, क्योंकि अगर सपोज एक पेरेंट होमोजाइगस है, आई और आई ओ है, दूसरा पेरेंट हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, आई और आई ओ भी हो सकता है। ओके, तो रेयरली ऐसा होता है, बट होता है ऐसा, जैसे आपने कहा कि अगर दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं तो डेफिनेटली देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑलवेज हैविंग द ओ ब्लड ग्रुप। ओके Okay, ma'am. ओके, सो ये जो चीजें आपको क्लियर होंगी, यू कैन मेक क्रॉसेस बनाओगे, बट जस्ट ये जो आपकी हाई क्लासेस में बड़े सारे क्रॉसेस होते हैं, यहाँ तो आपको सिर्फ यही इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप और ये चीज़ है। हाई क्लासेस में आपके पास डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस होते हैं, जीन्स में, स्किन कलर का, हर एक करेक्टर का हम जो है वो बनाते हैं। ओके, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हम जीनोटाइप बनाते हैं, उनके क्रॉसेस बनाते हैं। यहाँ तो आपका 10th में बिल्कुल इट इज़ वेरी सिंपल कि यू आर टेकिंग ओनली द पी प्लांट एंड द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज देयर। ओके okay, so can I end the session now? Yes, Ma'am, ma'am. what is the syllabus of pre-boards? Your whole syllabus is coming, we are doing this chapter. Okay, ye chapter we will finish within 1 or 2 day. Okay, with 1 or 2 classes. Okay, उसमें finish कर देंगे, and then we are left with natural resources, that is a very simple chapter. So whole syllabus is coming in the pre-board. Okay, ma'am. Okay.